آج کل بہت سے بچے جو ہیں نا وہ ضدی ہوتے جا رہے ہیں، والدین کی جو ہوتی ہیں نا بالکل بھی نہیں مانتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا غصہ دکھاتے ہیں، ماں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں نا تو یقیناً آپ جو ہے نا بینگ اے مدر یا بینگ اے پیرنٹس ایسی غلطیاں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جو آپ جانے انجانے میں جو ہے نا آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، اور آپ وہ غلطیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بار بار ان غلطیوں کو روزمرہ زندگی میں جو ہوتے ہیں نا وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، اور والدین کی انہی غلطیوں کی وجہ سے جو ہوتے ہیں نا بچے ڈھیٹ بدتمیز اور ضدی جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں جو ہے نا ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جانے انجانے میں جو ہیں والدین کر رہے ہیں، اور یہ غلطیاں بچوں کو جو ہے نا بری طرح سے جو ہے نا ان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے سبھی پوائنٹس کو جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈے ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی۔ آج ولاگ جو ہے وہ میں نے صبح سے شروع کیا ہے، ناشتے کے بعد جو ہے وہ گھر کی صفائیاں وغیرہ، کپڑے جیسے دھوتے ہیں اور پھر ان کو ڈال دینا تاروں پر، اور پھر اس کو اتارنا، پھر طے کر کے رکھنا۔ تو آج جو ہے وہ میں زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ریسیپی بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور وہ بھی جو ہے نا بہت مزے کی بنی تھی۔ میں نے بھی فرسٹ ٹائم بنائی ہے ممتاز کڑاہی، تو میں نے بھی بنائی، بہت آسان اور بہت مزیدار تھی۔ آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور دیکھتے جائیے گا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے آج کڑاہی بنائی ہے، ممتاز کڑاہی۔ تو چلیں کام کرتے ہوئے جو ہے نا آج کا ٹاپک بھی جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم جو ہے نا جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں والدین، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جس سے ہمارے بچے ڈھیٹ، ضدی، بدتمیز وغیرہ وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک بچوں کی جو ہے ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں جو ہے میں اس کا یہ لنک ڈال دوں گی، آپ اسے بھی جا کے ضرور اس کو واچ کیجیے گا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے تعریف سے زیادہ تنقید کرنا۔ کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا دن جو ہوتے ہیں نا بچوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیگیٹو پوائنٹس کو جو ہوتے ہیں نا وہی بتا رہی ہوتی ہے ان کو، پازیٹیو جو ہوتے ہیں نا ان سے نہیں کہتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم دیر سے اٹھتے ہو، رات کو جاگتے ہو، ٹائم جو ہے وہ سارا دن سونے پہ لگا دیتے ہو، یہ کام تم غلط کر رہے ہو، اس کام کو تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا بچوں پہ تنقید سے بھرے ہوئے تیر نشتر جو ہوتے ہیں، بس گلا خراب ہے، گلے خراب کی وجہ سے صحیح سے بولا بھی نہیں جاتا، بار بار جو ہے نا آواز تھوڑی سی کھنک کے آتی ہے۔ خیر، وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو علم نفسیات اس پہ کہتے ہیں، بچوں کے جو ہے نفسیاتی سائیکالوجی ہے کہ وہ مسلسل بچوں پہ جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کا ذہن میں جو ہوتے ہیں نا ایک خاص سوچ جو ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا وہ مستقل جو ہوتے ہیں نا منفی کیفیت میں جو ہوتے ہیں وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بچے نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں اور ضدی اور چڑچڑے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے، یہ بچہ جو ہوتا ہے نا ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے بچے کے جتنے بھی اچھے رویے ہیں، اچھی باتیں ہیں، جتنی بھی اچھی باتیں ہیں نا اس کی پازیٹیو، آپ نے اس کو چن چن کر نا اپنے بچے کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی ہے، یعنی کہ تنقید کم سے کم کرنی ہے اور اس کی تعریف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اور جب بچہ جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرے نا تو اس کو پیار سے اس کو گلے لگائیں، اس کی تعریف کریں۔ سارے دن میں آپ کے بچہ کوئی تو ایک کام جو ہے وہ اچھا کر رہا ہوگا نا، سارا ہی گندے ہی تو نہیں نا غلط کام کر رہا ہوگا، تو اسی میں جو ہے نا اس کی تعریف کریں۔ اور جب بچہ جو ہے شرارتیں یا غلط کام کرے نا تو پیار سے اس کو سمجھائیں۔ جب بھی ہم بچے کو کوئی کام کی تعریف اس کی کریں گے نا، جو کرے گا اچھا کام، تو بچہ جو ہے نا ضرور اور اچھا اس کو کام کو جو ہے نا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں پہلے بھی جو ہے نا ایک ولاگ میں نے میرے خیال سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر بچے جو ہے نا اچھے کام کو جو ہے نا ہم اس کو جو ہے پازیٹیو بات کو جو ہے نا وہ دہراتے رہیں گے نا تو وہ بار بار جو ہے نا وہی کام کرے گا۔ اگر آپ نیگیٹو بات کو جو ہے وہ کام کو جو ہے وہ بار بار ذکر کریں گے تو وہ پھر وہی بار بار کام کرے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی رکھیں تاکہ وہ اس کا جو ذہن ہے وہ اچھی باتوں کی طرف جو ہے نا وہ رہے، تاکہ وہ ضدی اور جو ہے وہ ڈھیٹ پن کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کرے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اپنے بچے کو سنے بغیر آرڈر دینا، یا بچے کی بات سنے بغیر اپنا حکم جو ہے اس کو دے دینا۔ اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا جب کسی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو بات بتاتے ہیں کہ تو والدین کیا کرتے ہیں، اس کی بات سنے بغیر ہی بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارا ہی قصور ہوگا، تم نے کوئی غلط بات کی ہوگی، تو اپنے بچے کو چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ کرو، تم نے ہی کوئی جو ہے غلط کام کیا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں، پھر بچہ کہتا ہے سنتے تو
आप खुद ये सोचें कि बात को मुकम्मल सुने बगैर जो है ना कोई आपको जब चुप करा देगा ना, तो ऐसा ना करो, तुमने ही कोई गलती की होगी। तो इस तरह जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ना, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको भी ये अच्छा नहीं लगेगा। आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, आप जो है वो ज़िद्दी भी हो जाएंगे, आप जज्बाती भी हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। तो बच्चा भी जो है ना बिल्कुल यही करता है। उसके इमोशंस भी जो होते हैं ना इसी तरह जो होते हैं ना वो दुखी हो जाता है, उसके भी इमोशन जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये उसका क्या हल है कि बच्चे को जब भी है ना एहसास अहमियत उसको दिलाएं, यानी ये महसूस करवाएं कि आपकी बात की भी कोई अहमियत है। बेटा आपकी बात भी जो है ना बहुत अहम है। पहले क्या है, बच्चे को मुकम्मल उसकी बात सुने, उसे कहने दें और फिर उसका जो है जवाब दे, तहम्मुल से सुने। अगर आप भी जज्बाती हो जाएंगे या गुस्से में आ जाएंगे ना, तो बच्चा भी यही करेगा, जज्बाती भी हो जाएगा, वो गुस्से में भी आ जाएगा, उसका रवैया भी ऐसा हो जाएगा। वो भी आपके साथ क्या होगा, जज्बाती होकर बात सुनेगा, और वो भी क्या आधी जो है वो बात का जो है आपके जवाब देगा। और फिर दूसरे बहन भाइयों के साथ भी होगा, वो ऐसा ही करता रहेगा। फिर आप कहेंगे कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है या बदतमीज़ हो गया। असल में जो है ना वो आपके रवैये को जो है ना कॉपी करके जो है ना वो ऐसे हुआ है। तो तीसरा पॉइंट है मोबाइल के ज़रिए बच्चे को चुप करवाना। अक्सर वालिदैन होते हैं, जब कोई बच्चा जो होता है ना गलती कर रहा होता है या शरारतें कर रहा होता है या बहन भाइयों के साथ जो होता है मिलकर शोर मचा रहा होता है या रोना धोना मचा रहा होता है या खाना नहीं खा रहा होता, तो बहुत सारे जो होते हैं ना वालिदैन या माएँ जो होती है ना कहती है बेटा ये लो मोबाइल ले लो। मोबाइल देने पर क्या होता है, बच्चा जो होता है फ़ौरन खामोश हो जाता है, शरारतें करना छोड़ देता है और मोबाइल लेकर ना कोने में मज़े से जाकर जो होता है वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है, वो खाना भी बड़े मज़े से खाता है, क्योंकि बच्चे से ने ये सोच लिया होता है कि ये जो है ना उसने सीख लिया होता है कि जब भी जो है ना मैं अगर दुखी होता हूँ या मैं जो यूँ शरारतें करूँगा तो बस मुझे जो है वो मोबाइल मिलेगा और एक कोने में जाकर जो है ना मैं बैठ के फ़ोन देखूँगा। जब वालिदैन ये करती हैं ना तो बच्चों को जो होता है ना उनसे जो होता है वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे ये सोचती हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे मसाइल या जज्बात को किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो है ना सिर्फ मोबाइल मिल गया ना तो ये सब ठीक है। इस तरह क्या होता है, जब बच्चा थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी में छोटे मोटे मसाइल जब आते हैं ना तो वो किसी के साथ जो होते हैं ना वो फिर शेयर नहीं करते हैं। तो ये गलती भी जो है ना वो ना करें। उस वक्त बच्चे के साथ जो है ना उसके साथ ऐसे रहें, उसको टाइम दें, उसको जो है कोई कहानी सुना दें, उसका ज़हन जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसको प्यार से समझाएं, उससे अच्छे अच्छे वाक़यात बताएं, अच्छी अच्छी बातें उसको बताएं और अच्छा माहौल बनाएं ताकि बच्चा जो है ना आपके साथ जुड़े, ना कि मोबाइल के साथ वो जुड़े। तो ये सर्च से यही पता चलता है कि आजकल के जो है ना वो टीनेजर जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे वो वालिदैन को जो है ना वो टाइम नहीं देते हैं। उनको सिर्फ क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो छोटी उम्र में बच्चों को जो है ना फ़ोन देकर चुप करवाना जो है ना, खाना खाते वक्त भी जो होता है ना, ये गलती कभी भी ना करें। उन्हें खुद टाइम दें, उन्हें खुद समझाएं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे टाइम जो है ना अच्छे से गुजारें और मिलजुल कर गुजारें, प्यार मोहब्बत से गुजारें। चौथा पॉइंट है वालिदैन का जो है ना बच्चों से गुस्से में बात करना। बाज़ पेरेंट्स होते हैं जो कि नरमी के बजाय सख्ती से जो होते हैं ना वो बात करते हैं। ये बहुत अहम बात है, इल्म नफ्सियात बताती है, गौर से सुनिएगा। गुस्से में जो है ना दी गई नसीहत और दी गई हदायत, ये सबसे पहले जो होता है ना दरवाज़ा जो होता है ना दिमाग का, वो जाके बंद करती है। यानी दिमाग जाने से पहले ही जो है ना उसका रास्ता जो होता है ना बाहर का, वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब बच्चे को आप गुस्से से जो है ना वो नसीहत करते हैं ना, तो बच्चे की जो 5 सेंसेस होती हैं ना, हिस्स होती है जो, जिसके ज़रिए वो दुनिया से जो होता है वो जुड़ता है, वो जो होता है ना डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। और 5 हिस्सेस जो होती हैं ना, सेंसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, जाम हो जाती हैं। और जब वो हिस्सेस जो हैं या सेंसेस हैं जब फ्रीज़ हो जाती हैं ना, तो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जो है ना बच्चे के ज़हन तक जो होती है ना पूरी तरह से वो पहुँच नहीं रही होती हैं। और जो वालिदैन के जो होते हैं बच्चों को जो है ना वो सख्ती से जो है उससे पेश आते हैं या गुस्से के ज़रिए जो होता है उसे सीधा किया जाता है बच्चे को, तो वो जो है ना गलत सोच रहे होते हैं कि मैं इसे सही कर दूंगा, गुस्से से सही कर दूंगा। तो हमेशा जो है ना माहौल को जो है ना वो खुशगवार रखें और ख़ुद भी जो है ईजी रहें और बच्चों को भी जो है ना ईजी होकर जो है ना ठंडे होकर जो है ना उनसे बात करें। पांचवी गलती है पेरेंट्स का जो है आपस में लड़ना झगड़ना। ख़ास तौर पर जो होता है ना बच्चे के सामने वालिदैन का आपस में लड़ते झगड़ते रहना या ऊंची आवाज़ में बात करना, यहाँ तक कि हाथ भी उठाया जाता है। जब बच्चा ये माहौल देखता है ना तो उनके अंदर क्या होता है, खौफ बेचैनी पैदा हो जाती है और बच्चा अपने आप को जो है गैर महफूज जो होता है ना महफूज करता है। और जो बच्चे जो छोटे होते हैं ना उनको तो इतना पता ही नहीं होता, जब वो वालिदैन लड़ झगड़ रहे होते हैं ऊंची आवाज़ों में जो होते हैं उनकी आवाज़ें सुन रहे होते हैं, तो उसको क्या होता है, बच्चा बेचैनी जो होती है उसके अंदर होने लग जाती है। और छोटे बच्चों को तो अपने जज्बात को संभालना ही नहीं
आता। तो फिर ये होता है कि चिड़चिड़ापन का शिकार होने लग जाते हैं, उनके अंदर जो है खौफ पैदा हो जाता है, और एक खौफ ज़्यादा इंसान जो होता है ना वो कैसा फिर होता है, उसकी क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो भी बहुत लो हो जाती है, उसके अंदर एतमाद की भी कमी हो जाती है, और बहुत सारे नफसियाती मसले भी आ जाते हैं जो वालिदैन को झगड़ते देखते हुए रहने की वजह से जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका हल ये है कि देखिए, इख्तिलाफात जो होते हैं ना हर घर में होते हैं, हर मियाँ बीवी में होते हैं। तो क्या करना है, आपने साइड पे होना, बच्चों के सामने नहीं लड़ना, उसको कोई बात को डिस्कस नहीं करना, झगड़े नहीं करने, अलहदा बैठकर आप इसको जो है ना मसलों को हल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है उम्र की बुनियाद पर गलत तवक्कुआत, यानी कि तवक्कुआत ही हम गलत रखते हैं, यानी कि हम कभी कभी जो होते हैं बच्चों से जो होते हैं ना ऐसी बात मनवाना चाहते हैं कि उसकी उम्र से बड़ी होती हैं, जिनका करना बच्चों के लिए जो होता है ना नामुमकिन ही होता है। कई दफ़ा होता है माएँ जो होती हैं ना बच्चों से ऐसी जो होती है तवक्कुआत या उम्मीदें रख लेती हैं जो उनकी उम्र के, उनके जहन से और उनके जज्बात से जो होता है ना उनको समझ बूझ ही नहीं होती है, उसके मुताबिक ही नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 साल का बच्चा है ना या 4 साल का बच्चा है, और वो जो है उसको आप कहेंगे कि आप साफ़ सुथरे रहो, आप खामोश रहो, और उस एज के हिसाब से जो है ना ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर माँ बार बार बोले कि बेटा कपड़े गंदे ना करो, चुप रहो, खामोशी से बैठो, शरारतें ना करो, शोर ना मचाओ, तो इस तरह क्या होगा, बच्चा जो है उलझन और बेजारी जो है उसको महसूस होने लग जाएगी। इस तरह चिड़चिड़ापन भी आना शुरू हो जाएगा, और वो इस तरह जो है ना हर वक्त की रोक टोक से ज़िद्दी भी बन जाता है और ढीठ भी बन जाता है। इस तरह से जो है ना बड़े बच्चे अगर हों और काम करना या भूल जाएं या काम गलत करते हैं, तो ये तो जो है ना एक फितरती अमल है, इसकी ग्रोथ जो होती है ना बढ़ने का जो है, उसका बढ़ने का जो है हिस्सा है। लेकिन वालिदैन जो होते हैं इन बच्चों को जो होते हैं बेअक्ल कहते हैं या बदतमीज़ अगर कहेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा बदअदमाती और नाफरमानी की तरफ जो है वो माइल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह बच्चे ज़िद्दी होने शुरू हो जाते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं ना बाज़ दफ़ा खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो हमेशा बच्चे की उम्र के मुताबिक जो है ना उस पर काम डालें या जिम्मेदारियाँ डालें। बाज़ दफ़ा होता है कि हम माएँ कहती हैं कि हम बचपन में कितना काम करते थे अपनी बेटियों को, और मेरी बेटी जो है वो काम नहीं करती है। देखिए, आपके घर का माहौल, हालात जो थे वो मुख्तलिफ थे, मुख्तलिफ तरीके से जो होते थे ना आप काम करते थे। लेकिन आजकल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, आजकल के बच्चे आजकल के हिसाब से काम करते हैं। तो अपने बच्चों के साथ जो है ना उनके साथ दौड़ मत लगाएं, मुकाबलाबाजी ना करें। इस उम्र में जो है ना ये काम करते थे, तो हमारे बच्चे जो हैं ना वो भी ये काम करने, उनको भी आने चाहिए, हम भी करते थे। अपने घर के माहौल के मुताबिक हर बच्चा जो होता है ना वो काम करता है, और आपके बच्चे जो है ना उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं जिसकी आपने उन्हें आदत डाली हुई होती है। तो हमेशा जो है ना बच्चे की उम्र और जहन, उसके जज्बात की समझ बूझ पर जो होती है ना हमेशा नज़र रखते हुए ना बच्चों से जो है ना तवक्कुआत जो है ना वालिदैन को रखनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे तो मुझे जो है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी, अगर आपने कोई बात सीख ली है तो बच्चों की तरबियत जो है ना पहले हमें खुद जो है ना सीख कर जो है ना उस पर अमल करने, ताकि हम अपने बच्चों पर फ़ख्र कल को महसूस कर सकें, और बच्चे हमारी आंखों की ठंडक और हमारी आंखों का तारा बने रहें। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।